Hello students, hope your quarantine time is going good and I'm back with another chapter that is two stories about flying which is from your first flight book. And students, this chapter contains two stories. We'll do the part 1 today. That is his first flight, which is written by Liam O'Flaherty. He was an Irish writer. So, students, let me introduce the chapter first. This story is about a young seagull. Seagull, it's a seabird who was afraid of flying, but later, due to some unfavorable circumstances, he made his first flight. So, students, as you can see, the chapter highlights on your screen, which helps you in better understanding. So, let's start the chapter. It has been told in the chapter when young Seagull was sitting alone on the ledge, his two brothers and one sister, whose wings were shorter than his own, had already learned the art of flying. Because he was so afraid that he could not able to move his wing, and he would always think that his wings never support him while flying because he was so afraid of flying. His parents scolded him, taunting him, and also very worried about him because in this way he would not able to feed himself. And he always saw his parents busy with his sibling to make perfect them in flying, like how to skim the waves, how to dive a fish into the water. And his parents also called young seagull to join him, but he never joined them, and one day his parents left him in order to find food for themselves. So students, ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि यंग सीगुल सीगुल एक सी बर्ड है, वो एक चट्टान पे अकेला बैठा हुआ है और वो देखता है कि जो उसके छोटे भाई बहन हैं वो भी उससे पहले उड़ना सीख चुके हैं, और जबकि उसके छोटे भाई बहन के जो विंग्स है उससे छोटे हैं फिर भी वो उड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो यंग सीगल है वो इतना डरपोक है, वो कभी भी ट्राई नहीं करता है कि वो उड़े। उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही वो ये अटेम्प्ट भी करेगा तो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। इस वजह से उसके जो सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, उसे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, उसे टॉन्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यू कैन सी टू वर्ड्स हियर, कजोलिंग एंड प्रोवोकिंग, विच हैज़ द मीनिंग दैट टू स्कोल्ड समवन, टू टॉन्ट समवन, बहलाना फुसलाना, समझाने से इसका मतलब यहाँ पर है। तो उसे समझाते हैं उसके पेरेंट्स, लेकिन वो फिर भी कभी नहीं इतना करेज इकट्ठा कर पाता है कि वो उड़ने के लिए ट्राई भी करे। और वो क्या देखता है, उसके पेरेंट्स जो है वो उसके छोटे भाई बहन के साथ हमेशा बिजी रहते हैं, उसे और अच्छे से उड़ना सिखाते रहते हैं, उसे ये बताते रहते हैं कि वेव्स में कैसे आपको तैरना है, कैसे उड़ना है, ऊपर कैसे आपको जाना है, कि डाइव करके जो सी वेव्स है उसमें डाइव करके कैसे फ़िश को बाहर लेकर आना है। और उसे यंग सीगुल को जो पेरेंट्स हैं उसे भी बुलाते हैं कि तुम भी अपने भाई बहन के साथ हमें ज्वाइन करो, तुम भी ये सब सीखो, लेकिन वो कभी भी उन्हें वहाँ पर नहीं ज्वाइन करता है, कभी भी नहीं जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं और जो उसके सिबलिंग्स होते हैं, क्योंकि उन्हें उड़ना आता है तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए उसे वहीं पर छोड़ के निकल चुके होते हैं। इसलिए छोड़ के निकल के चले जाते हैं क्योंकि यंग सीगुल उड़ना ही नहीं चाहता होता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, तो उसे वहीं पर बैठना है। अब उसके पेरेंट्स और उसके जो भाई बहन हैं वो जा चुके हैं अपना खाना ढूंढने के लिए। 24 hours has been passed here, and young Seagull started crying due to hunger, but nobody pays attention towards him except his mother. Now his mother approached him with a piece of fish in her beak, but here young Seagull starts pretending that he is about to faint by standing on one leg and closing one eye. But still nobody noticed his false unconscious state of health, because his mother wanted that young Seagull at least made an attempt to fly in order to get the fish. And again everybody starting taunting him for his cowardice. Now his mother stopped in a midway, and due to extreme hunger, finally young seagull dived to catch a fish to feed himself. सो स्टूडेंट्स 24 घंटे हो चुके होते हैं उसके पेरेंट्स को गए हुए, सिबलिंग्स को गए हुए, और इन 24 घंटे के अंदर यंग सीगल को बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी होती है। अब जब वो वापस आते हैं उसके पेरेंट्स और सिबलिंग, वो देखता है कि जो उसकी मदर है उसकी बीक में, उसकी चोंच में एक फ़िश है। अब फ़िश को देखकर उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अब मदर चाहती है कि मुझे ये फ़िश उसे खुद ना देनी पड़े यंग सीगल को, यंग सीगल खुद ही अटेम्प्ट करे, खुद ही ट्राई करे इस फ़िश को पकड़ने के लिए। और अगर उसे उस फ़िश को पकड़ना है तो आप देख सकते हैं कि यंग सीगल को इस लेज से, इस चट्टान से उड़ना पड़ेगा अपनी मदर की बीक से वो फिश निकालने के लिए।
अब यहाँ पर जो मदर है वो उसे एक तरह का लालच दे रही है कि जिससे वो एटलीस्ट उड़े, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा होता है, फिर वो उड़ना नहीं चाह रहा होता है, डर रहा होता है, तो इस वजह से फिर फैमिली वाले उसे बहुत ज़्यादा टॉन्ट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब वो देखता है यंग सीगल की जो मदर उसके पास आ रही है, आते आते वो बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अब वो जब रुक जाती है उससे बिल्कुल भी यंग सीगल से कंट्रोल नहीं होती है अपनी भूख, और इस फ़िश को देखते ही, क्योंकि वो फ़िश आधे रास्ते में उसकी मदर के बीक में है और वो उसे कंटिन्यूसली देखे जा रहा है, तो फाइनली क्या डिसाइड करता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे यहाँ से उड़ना ही पड़ेगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तो फाइनली वो डाइव करता है, उड़ता है और फ़िश को अपनी मदर की बीक से निकालने के लिए वहाँ से फाइनली एक अटेम्प्ट करता है। So the next moment he felt his wings spread outwards, and that's how he made his first flight. All cheered him, and also he learned how to skim on the sea waves by touching only his belly. So that's how he made his first flight successfully. Here chapter ends. So students, क्या होता है, वो जैसे ही देखता है कि वो उड़ने के लिए अपने पंख फैला चुका है और वो आसमान में उड़ रहा है, और उड़ते उड़ते वो नीचे धीरे धीरे जाता है, फिश को पकड़ता है। ये देखते ही फैमिली और सिबलिंग्स उसे वो सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसे इनकरेज करने लग जाते हैं। और इसके साथ साथ वो वेव्स पे भी कैसे, जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्र की लहरें होती हैं, उसमें भी कैसे उड़ना है, कैसे उसमें बैलेंस बनाना है, सिर्फ अपना बैली टच करके उसमें कैसे बैलेंस बना के चलना है, ये सब भी सीख चुका होता है। और यहाँ पर चैप्टर एंड हो जाता है। So students, what's the moral of the story? That one must be self-dependent and confident, and also it shows the need for motivation to reach the goals. कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली ही क्यों ना हो। हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को खुद कर पाएँ। और ये स्टोरी ये भी बताता है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेशन की भी कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है। और बेटर हो वो मोटिवेशन हमें अपनी फैमिली से मिले, और उससे भी बेटर हो कि वो इंट्रांसिक मोटिवेशन हो, हम अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर दें। वन शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग।